Hi, hello and welcome. I'm Guri. I'm a final year MBBS student at GGS Medical College and Hospital, Faridkot. I've been receiving a lot of requests on my Instagram handle regarding the hostel tour of GGS MCH Faridkot. So right now we are standing outside the boys hostel of GGS MCH. This is the hostel board of boys hostel, which is an ancient board, by the way. And let's begin. Most of the time in initial year of first year of MBBS, people are confused whether to choose a PG or a hostel in the first place. There are various factors to be considered before choosing a PG or a hostel in the first place. So after this video, you might get somewhat an idea whether to choose a PG or a hostel in the first place. Right now, we are standing in the parking area of the boys hostel of GGS MCH Faridkot. Right behind me is the parking slot. There are two parking slots for the vehicles, and right in front there is a open parking area. आपको हॉस्टल कैसा लग रहा है? हॉस्टल में बहुत मजा आ रहा है। मजा क्यों आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। कोई फैक्टर? कोई फैक्टर बताइए। बाथरूम टुੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਛੱਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਤਗੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। You want some? The three things to be considered the most. First is the food, then is the shelter, and then is the sanitation. And regarding the sanitation, we'll see the washrooms of the boys' hostel, and we'll see how much better is the sanitation in the boys' hostel as well. So let's go. This is the boys' hostel washrooms in the boys' hostel of GGS MCH Faridkot. Whole of the roof of the washrooms are. This is the condition of washrooms of boys' hostel. The rooftop is severely damaged by the rain and all. This is the geyser which in winters rarely works. So let's see the floor. The washrooms are really untidy and unhygienic, yet we are managing. This is the condition of the washrooms, which is really untidy. The administration should be looking into it. These are the washrooms. Tom of Priyanshu is our junior. He's from 2022 batch. Right now, 2022 batch. Okay, so he's Priyanshu from 2022 batch. So we'll be asking questions regarding the hostel and PG, which is better option. So we'll ask his experience in the hostel. You have been here from like 2 years now. हाँ जी, So how's your experience when you came here as a fresher? क्योंकि मैं पहली बार ही आया था घर से तो काफी लाइक रॉ ही था मैं, इतना ओपन था नहीं, अपना इंट्रोवर्ट अकेले रहने में ज्यादा अच्छा लगता था मेरे को। पर जब आप हॉस्टल में आते हो तो आप ओपन हो जाते हो और आपको थोड़ा एडजस्ट करना आ जाता है चीजों के साथ और आपके ग्रुप बनते हैं तो आप ओपन होते हो, आप थोड़ा वो फ्री फील करते हो क्योंकि आप घर से पहली बार निकले हो तो आपको चाहिए होता है कि आप थोड़ा एडजस्ट कर सको किसी के साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था हॉस्टल में आने में। So when you came here as a fresher, ना mostly जो freshers आते हैं उनके दिमाग में होता है कि हो हॉस्टल में जा रहे हैं तो how would be our interaction with the seniors, है ना? तो मोस्टली बच्चों के मन में डर होता है। तो how's your experience with interacting with your seniors right here? मैं तो काफी मजेदार था। लाइक डर मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक फिक्टिशियस ही है, इतना होता भी नहीं। थोड़ा इंटरेक्शन करना जरूरी भी होता है कि आप जान सको कि आपके सीनियर हैं कौन, क्योंकि सीनियर्स काफी हेल्पफुल होता है। आपको मार्किंग चाहिए या आपको जानना है आपको प्रेजेंट कैसे करना है अपने आपको कॉलेज में या कब आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड क्या करना चाहिए, तो सीनियर्स काफी हेल्प करते हैं। अगर आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे। Exactly. तो मेरा तो काफी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस था। I hope तुम किसी के डर में नहीं कह रहे हैं। नहीं। तो okay, so your experience was good with your seniors. जी। Exactly, they are helpful. Even my experience was also very great when I came here. So our seniors were very good and we tried our best कि हम भी अपने juniors को ना अच्छे से treat करें. So next thing I would like to ask you regarding the we know है ना हम दोनों हॉस्टल में रहते हैं तो हमने वॉशरूम्स की कंडीशन देखी है ना। It's not good. Administration should look into this matter. So what are your views regarding the washrooms in the hostels of the GGS? Either you consider GGS, MCH or Patiala or Amritsar, है ना? We know government setups में अभी होता है। Do you मेरा ऐसा मानना है कि फैसिलिटीज कहीं भी टॉप नॉच नहीं हो सकती जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि आप घर से आए हो पहली बार जो फ्रेशर्स हैं, तो फैसिलिटीज उतनी एट पार तो नहीं रह सकती। Yes. बट क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सेटअप में आने वाले हो और आगे आप वही काम करोगे तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, एक्लिमेटाइज करना आदमी को आना चाहिए। ये Exactly. मेरा मानना है। Exactly. Even in government setups, hospitals or PHCs, we'll see there are not, eventually there are not good facilities, or we can say government is not looking into this matter
I don't want this interview or video to be a political issue right here, or not. We are not against the administration. Just we want to know that the exact thing which is at the baseline, जो facilities हैं वो कितनी up to the mark हैं. So next, I would like to ask you about the mess. Like हमारे mess में तो जैसे meal system भी है and the monthly charges are also. तो 36,000 बन जाता है साल का अगर आप मंथली पे करते हो, ना 3,000 अराउंड मंथली. तो साल का 36,000 अगर आप मेस लगाते हो हॉस्टल में तो 36,000 बन जाता है. और मील सिस्टम में ऐसे है कि जिस दिन रेगुलर मील का नॉर्मल रेगुलर मील इधर ब्रेकफास्ट डिनर और लंच यू विल हैव टू पे 45 रुपीज फॉर द मील. एंड अगर उस दिन कुछ अच्छा बन गया, पनीर बन गया, चिकन बन गया, अंडा बन गया, तो उसके प्राइसेस राइज कर जाते हैं ना प्रियांश. हाँ 60 to 75 रुपीज हो जाते हैं. तो आप तो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, मी टू आई एम टू वेजिटेरियन. एंड अगर आप पीजी लेते हो तो पीजी में जो है चार्जेस वेरी करते हैं, आई गेस ज्यादा ही होते हैं. हाँ 6,000-7,000 रहने का हो जाता है और मैस अलग. एंड टिफिन सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द पीजीज. सो बहुत सारी टिफिन सर्विसेज भी हैं वहाँ पे जो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से मिल जाती है. तो इतना वेरी नहीं करता, पर देर इज अ डिफरेंस. तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि जो हमारा हॉस्टल का रेंट है ना, वो तो कम ही है, आई गेस कितना है, 42,000 हॉस्टल का रेंट है. एंड इफ यू आर चूजिंग अ पीजी तो पीजी का रेंट जो है काफी ज्यादा हो जाता है. अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज जो है मंथली चार्जेस होते हैं. अकेला रेंट का आपका यू कैन लाइक 60-70,000, 72 आई गेस, हाँ 60-70,000 आपका बन जाता है. 5,000 मंथली, सो इट वुड बी अराउंड साल का 60,000 to 70,000 आपका ओनली रेंट. एंड जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, बिजली का बिल हो गया, हाँ बिजली का बिल हो गया, मीटर वगैरह अलग से लगा होता है रूम का, है ना, तो उसका. और एसी के चार्जेस अलग है, हाँ ना, एसी के चार्जेस अलग है. अपना एसी लगवाना होता है, कई बार पीजी में पहले से एसी लगा होता है ना, तो वो वेरी कर जाता है कंडीशन ऑफ द पीजी के हिसाब से. अगर आप हॉस्टल में एसी लगा रहे हो तो आपको अलग से पे करना पड़ता है उसका, और एसी आपका खुद का होता है और उसके चार्जेस होते हैं अराउंड 15,000 आई गेस. हाँ इतने होगा साल के 15,000. उसके बाद आप भले सर्दियों में भी चलाते रहो तो कोई इशू नहीं है, पर कौन चलाएगा. ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं. रेंट हो गया हमारा, मेस हो गया, वॉशरूम्स हो गए, है ना, हॉस्टल के चार्जेस भी हो गए. नाउ कंसिडरिंग द सोशल एनवायरनमेंट अराउंड अ फ्रेशर, we should be considering a PG or a hostel, which is the better option. मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी पढ़ाई करते करते आदमी बर्नआउट हो जाता है. वो नेचुरल प्रोसेस है कि आपको एग्जाम्स देने हैं या आपको टेस्ट आ रहे हैं. हर एक आदमी बर्नआउट होता है, जितना भी सॉलिड क्यों ना हो पहले आने से पहले, नीट की तैयारी क्यों नहीं, कितनी अच्छी क्यों नहीं करी हो. तो जब आप बर्नआउट होते हैं आप एक डिस्ट्रैक्शन या कोई एक वे आउट ढूंढते हो. वो वे आउट होता है कि आप दोस्तों जाके बैठ के बात कर लो या आप कुछ उनके साथ बाहर चले जाओ थोड़ा बहुत. तो वो पीजी में मेरे को लगता है कि वो लैकिंग है, क्योंकि पीजी आपका काफी एक छोटा ग्रुप होता है सबसे पहली बात. और हॉस्टल में चाहे आपके बैच में कोई ना हो इतना, तो सीनियर्स हैं या फिर जूनियर्स अभी आ गए, तो आपको कोई ना कोई वे आउट मिल ही जाता है. एटलीस्ट देयर इज सम अदर पर्सन हु इज देयर फॉर यू. वो हॉस्टल में अवेलेबल है बट पीजी में ये लैक करता है. तो मेरा मानना है कि हॉस्टल इसलिए थोड़ा बेटर है. मैं ऑल इंडिया कोटे से आया था कॉलेज में, तो मेरा घर जाना काफी कम ही होता है क्योंकि घर काफी दूर होता है यहाँ से. तो अगर मन नहीं लगता है तो इसलिए हॉस्टल में रहना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप बातचीत कर सको किसी के साथ. और जैसे पहले बहुत सारे दोस्त थे जो पीजी में अभी शिफ्ट हो गए, पहले हॉस्टल में ही थे हम सब साथ में, अब पीजी में शिफ्ट हो गए, तो उनके साथ एक प्रकार की डिस्टेंसिंग से हो जाती है. मतलब आप कॉलेज आके उनसे मिल तो सकते हो कि कैसे कर रहे हो, या फिर थोड़ा हैंग आउट कर सकते हो उनके साथ, बट वो एक प्रकार का जो वाइड टच होता था कि जब हॉस्टल में रहते थे वो मिस हो जाता है. फिर आप लाइक सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होते हो, बट उसमें उतना मजा नहीं आता जो पर्सन टू पर्सन फेस टू फेस आ जाता है. तो इसलिए लाइक अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो सोशलाइज करना, किसी से बातचीत करना, आपको ये जानते हो कि आप कैसे किससे बात करनी है आगे जाके भी, जो हेल्पफुल ही होता है. तो इसलिए हॉस्टल इज मच मोर प्रिफर्ड एज फॉर मी ओवर पीजी. चलो किच्चो में काम पूरा किच्चो सिटी. Okay, so we are having a guest with us. He's a batchmate of Priyanshu. Harpreet, would you like to join us? Okay. So Priyanshu was sharing his experience. कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको थोड़ा मन लग सकता है आराम से, क्योंकि आप अगर दूर से आए हो या आपका घर जाना कम होता है फ्रीक्वेंसी में, तो आप लोगों से बात कर सकते हो, जो हॉस्टल में काफी इजी है. पीजी में आपके लोग काफी कम होते हैं और जरूरी ना हो कि हर समय आपके साथ रहें, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ थे फर्स्ट ईयर में वो जरूरी नहीं है कि अभी भी हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. तो इसलिए हॉस्टल में रहना काफी प्रेफर्ड हो जाता है. So we'd like to know your opinion on whether to choose a hostel or a PG in the first year of MBBS. Thank you to Priyanshu for joining us, and thank you to Harpreet also for joining us.
You'd like to come, Hana, show your face for once. So guys, this is Harpreet. He's a very nice guy, and the cameraman is Manjinder over here. He's also from 2022 batch. This whole purpose of my videos is to provide you with the relevant information. Do let me know in the comment section what you want in next videos, and I'll see you in the next video. Until then, stay healthy.